Hello everyone. Today we will revise chapter 5 India Political. Okay, ma'am. Okay? India is located in the southern part of the continent of Asia. Asia continent के southern part में locate करता है हमारा इंडिया. कौन से part में करता है? Southern part. ठीक है? Southern मतलब नीचे वाला part. India is surrounded by the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east and the Indian Ocean on the south. अब देखिए वेस्ट की साइड में कहां से सराउंडेड है? अरेबियन सी. एंड बे ऑफ बंगाल ईस्ट की साइड में एंड इंडियन ओशन साउथ की साइड में. ठीक है? South. वेस्ट ईस्ट एंड साउथ. West, east, south. ओके. यस. मॉर्निंग बेटा. वेरी गुड मॉर्निंग. Acting as a natural boundary, the Himalayas separate India from the rest of continent Asia. जो हिमालय है हमारे इंडिया को बाकी कॉन्टिनेंट रेस्ट ऑफ एशिया है ना कॉन्टिनेंट उससे सेपरेट करता है. ठीक है? हिमालय एक बाउंड्री बनाता है जो हमें बाकी कॉन्टिनेंट से सेपरेट करता है. Separate. Boundary. Students are joining the class. Now we are reading India neighbors. India neighbors. Yes, India shares this boundary with many countries: Bangladesh, Myanmar, East, Pakistan and Afghanistan, and India's neighbors to the west. ये ईस्ट में है इंडिया के नेबर्स. ठीक है? बांग्लादेश एंड म्यांमार. और वेस्ट में अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान lie in the north of our country. ये चाइना, नेपाल और भूटान कहाँ है? नॉर्थ में. श्रीलंका and Maldives are India's neighbor to the south, but don't share common boundaries. अब जो श्रीलंका और मालदीव है ये वाटर बाउंड्रीज शेयर करते हैं. ठीक है? और बाकी हैं ये लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश ये तो लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं और मालदीव्स और श्रीलंका वाटर बाउंड्रीज शेयर करते हैं. इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री विद अ लार्ज पॉपुलेशन. एक बहुत ही लार्ज कंट्री है और पॉपुलेशन भी यहाँ की बहुत लार्ज है. The central or union government looks after the needs, welfare and safety of the people of our country. यहाँ की जो सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट है क्या करती है? लुक्स आफ्टर द नीड्स, लोगों की नीड्स, उनके वेलफेयर और उनकी सेफ्टी के बारे में काम करती है. ठीक है? द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ लोकेट करती है? न्यू दिल्ली. Which is the capital city? New Delhi. New Delhi is our capital city. The Prime Minister, the President and the other minister of the central government also live in New Delhi. जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं और हमारे जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो सारे कहाँ रहते हैं? न्यू दिल्ली. What is the current president and prime minister name? Prime minister name is? Yes. Yes, and our president name is? And our president name is? Yes, very good. People in India speak many different languages. About 22 regional languages are spoken in India. यहाँ पे 22 regional officially recognized language हैं. ठीक है? 22 regional languages हैं और भी बहुत सारी language और dialect हैं. India is divided into states and union territories. ठीक है? There are 28 states. यहाँ पे 29 लिखा है. अब 28 states हैं और 8 union territories हैं in our country. And each state has a state government. हर state की अपनी एक government है. ठीक है? हर state की अपनी एक state government है और जो दिल्ली की government है वो हमारी center government है. Look after the well-being of the people. The governor, chief minister, other minister and senior government officers of the state reside in the state capital. अब state capital के अंदर कौन कौन reside करते हैं? गवर्नर,
चीफ मिनिस्टर और भी मिनिस्टर और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये सारे उस स्टेट कैपिटल के अंदर रहते हैं. Beside the state, there are 8 union territories. These small areas come directly under the central government. ठीक है. और ये जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनका एरिया किसके अंदर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर. The Andaman and Nicobar Island form the largest union territory, while the Lakshadweep is the smallest. अब अंडमान एंड निकोबार लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है और लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट. ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है हमारे यहाँ पे? हिंदी. Yes, while the working language is English. ठीक है. While the working language is English and official language is Hindi. The regional languages of the state are their respective official languages. यानी किसी भी रीजनल लैंग्वेज, यानी किसी भी स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है वो वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है. People in the different parts of the country have diverse ways of dressing and living. ठीक है. डिफरेंट पार्ट्स के अलग अलग तरह से लोग, उनकी लिविंग जो है वो भी अलग तरह से है, और उनके जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी अलग तरह की है, और इवन उनकी ईटिंग हैबिट्स. तो जहाँ पे जो फूड ग्रो करता है, जैसा वहाँ का क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग वो ड्रेस भी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनकी ईटिंग हैबिट्स भी हैं. But despite this diversity, there is a sense of unity among the people of our country. मतलब हमारे देश में डिफरेंट रीजन्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट ड्रेसेस पहनते हैं, डिफरेंट फूड खाते हैं, और लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारा इंडिया क्या है? एक है. ठीक है. वी ऑल आर इंडियंस. यूनिटी. देयर इज अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस. ये देखिए, दिस इज अवर इंडियाज मैप. जो आपको ये ब्लैक सर्कल दिख रहा है ना, ये यहाँ की ये स्टेट है और ये कैपिटल है. स्टेट एंड द कैपिटल. जो डॉट लगे हुए हैं वो सारे कैपिटल एरियाज. आप सबको ये सारे स्टेट और कैपिटल नेम्स भी बेटा लर्न होने चाहिए. ठीक है. एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि हमारे कौन से स्टेट की कौन सी कैपिटल है, with their spellings also. These are the list of state and their capitals. There are 28 states and 8 union territories. Andhra Pradesh capital is Amravati. Arunachal Pradesh Itanagar. Assam Bihar. Please put your mic on mute. Put your mic on mute. Assam, Dispur, Bihar, Patna, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला. ये जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी हो गया है. झारखंड, रांची, कर्नाटका, बेंगलुरु, केरला, तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग. बेटा पुट योर माइक ऑन म्यूट. मिजोरम, एजवॉल, नागालैंड, कोहिमा, ओडिशा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गैंगटॉक, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून, West Bengal, Kolkata. These are our 28 states. Now, union territories. Okay. Andaman and Nicobar Island, Port Blair, चंडीगढ़. अब दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव दोनों की एक ही कैपिटल है यहाँ पे, दमन. ओके. लक्षद्वीप, कावरती. पुडुचेरी. दिल्ली की दिल्ली. जम्मू कश्मीर, श्रीनगर एंड जम्मू. ले लद्दाख की क्या है? ले. तो ये हमारी यूनियन टेरिटरीज ऑन देयर एंड देयर कैपिटल है. एंड यू हैव टू लर्न दीज. नाउ इट्स अ वेरी सिंपल एंड स्मॉल चैप्टर. इंडियाज नेबर टू द साउथ इज श्रीलंका एंड मालदीव्स. India's neighbor to the east is Bangladesh and
Myanmar. Myanmar and Bangladesh. How many states are there in India? There are 28 There states. are 28 states in India. Yes. How many union territories are there in country? 8 union There territories. are Yes. Yes. Which mountain range separates India from the rest of Asia? Himalaya mountain. Name the largest and the smallest state. Largest state is Rajasthan and smallest is Goa. Goa. Okay. This is activity for you. You have to find the name of uh, in this hidden names in this grid and their capitals also. Okay, you will do it yourself. Now this chapter is completed. Have you understood all these? This chapter is clear to all? Yes, ma'am. Okay. अभी रुकिए बेटा, अब हम एक दूसरा चैप्टर और करेंगे, ठीक है? एक बार वेट कीजिए। आपकी क्लास ओवर हो गया क्या? कितने बजे तक है? मैम 45 11:45। ठीक है, तो मैं अभी एक और हाँ तो मैं अभी एक और चैप्टर करवा देती हूँ। एक्चुअली बेटा मेरा ना आज पीटीएम थी 6 क्लास की, इसलिए मैं लेट ले पाई। ठीक है, इसलिए मैं आपकी क्लास टाइम से नहीं ले पाई, 6 क्लास की पीटीएम थी। तो अभी मैं आपको चैप्टर 6 और एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ। तो आप लोग बेटा अपने जो कईयों के माइक ना बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो उससे मेरी आवाज बहुत इको होने लग जाती है। तो आप वो अपने माइक प्लीज ऑफ रखिए, ठीक है? चलिए अब मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल do revision of chapter 6, food and clothing. We will read about India's food and clothing. India is a large country with diverse climate and weather conditions. Very large country, as you know very well. It has diverse climate and different weather conditions. The food and clothes of Indians vary depending on where they live. Or food and clothes depends upon where they live. Now we are reading about food. अब जब इंडिया में डिफरेंट रीजन्स हैं, ठीक है, और उनकी ईटिंग हैबिट्स भी अलग हैं, तो लोग वो फूड ज्यादा खाना प्रेफर करते हैं जो वहां पे ग्रो करता है, जो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन को सूट करता है, ठीक है? पीपल अक्रॉस द कंट्री ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। सबको पता है कि पूरी कंट्री में लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, यहाँ तक कि हम सब लोग, अगर हम नॉर्थ इंडियन है तो हम साउथ इंडियन फूड भी खाते हैं, और अगर हम साउथ इंडियन है तो हम नॉर्थ इंडियन फूड भी खाते हैं। The food that people eat in a particular region is known as the staple food of that region. Staple food? What is staple food? The food that people eat in a particular region. जो खाना लोग किसी पर्टिकुलर रीजन में खाते हैं वो वहां का स्टैपल फूड होता है। There is a question. What is the staple diet or staple food? The climate and the soil of that particular region influence the types of crops that can be grown there. जो क्रॉप्स किसी पर्टिकुलर रीजन में ग्रो करती हैं वो उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है? वहां का क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट है उसी के अकॉर्डिंग वहां पे क्रॉप्स ग्रो होंगी। जैसे यहाँ पे राजस्थान में है, अब आप राजस्थान में सोचे कि चावल उग जाए, राइस ग्रो करें, तो नहीं पॉसिबल है ना, बिकॉज राजस्थान इज अ डेजर्ट एरिया। तो यहाँ पे बाजरा ज्यादा ग्रो होता है। राइस ग्रो इन रीजन्स वेयर देयर इज एम्पल रेन। राइस, अभी देखिए मैंने आपके राइस का एग्जाम्पल दिया, तो राइस वहां पे ग्रो करते हैं जहां पे अच्छी बारिश होती है। इट विल नॉट ग्रो वेल इन राजस्थान वेयर देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द सॉइल इज वेरी सैंड। अभी मैंने यही एग्जाम्पल दिया था आपको कि राजस्थान में कैसे राइस ग्रो होंगे, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, तो राइस को बहुत एम्पल रेन चाहिए, अच्छा वाटर चाहिए। तो जहाँ पे बहुत लिटिल रेनफॉल होगी वहां पे सॉइल, और जहाँ पे सॉइल सैंडी होगी वहां पे कैसे राइस ग्रो करेंगे? दिस टाइप ऑफ सॉइल इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग व्हीट, बाजरा एंड जवार। तो इस तरह की सॉइल किसके लिए गुड है? इट्स गुड फॉर व्हीट, बाजरा एंड जवार। Yes. Now
इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री व्हीट इज प्रेफर्ड ओवर राइस। अब नॉर्दर्न एरियाज में कंपैरेटिवली राइस, लोग व्हीट को प्रेफर करते हैं, व्हीट ज्यादा खाते हैं, जबकि राइस नहीं खाते हैं। और क्या खाते हैं? गुड़ और जैगरी इज वाइडली यूज, यानी व्हीट इज प्रेफर्ड देन राइस, जैगरी इज वाइडली यूज। गुड़ भी बहुत खाते हैं। राइस इज द स्टैपल फूड ऑफ द पीपल लिविंग इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब राइस वहां की स्टैपल डाइट है जहां पे ज्यादा, जैसे कि ईस्टर्न है यहाँ आपका, सदर्न पार्ट है, ठीक है, कोस्टल एरियाज की तरफ लोग ज्यादा खाते हैं। इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया फिश इज वाइडली ईटन। अब कोस्टल रीजन में राइस और फिश बहुत खाते हैं, क्योंकि फिश वहां पे बहुत लार्ज अमाउंट में आपको मिल जाती है कोस्टल एरियाज के अंदर, तो वहां के लोगों का फिश जो है वहां की स्टैपल डाइट हो जाती है। पल्सेज आर पॉपुलर थ्रू आउट द कंट्री। सब जगह पल्सेज जो लेंटिल्स हैं हमारी सब जगह खाई जाती हैं, ठीक है। क्या होता है? दालें बेटा, लेंटिल्स भी बोलते हैं इनको, दालें, दाल खाते हैं ना। Yes, ma'am. Fruits and vegetables are also a very important part of the Indian meal. अब हमारे इंडियन मील का फ्रूट्स और वेजिटेबल है, डेली फ्रूट्स और वेजिटेबल तो हम डेली खाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी मील का खाने का। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, और ये पूरे साल लगभग अवेलेबल भी रहती है, पूरे साल आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि कौन कौन से फ्रूट हैं, कहाँ कहाँ ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख में यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, एप्पल और चेरीज ग्रो कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में मैंगो ग्रो कर रहे हैं, दशहरी मैंगो। नागपुर में ऑरेंज, रत्नागिरी जो मैंगो है यहाँ के फेमस मैंगो हैं। आसाम में पाइनएप्पल ग्रो करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं जहाँ पे कोई पर्टिकुलर फ्रूट और वेजिटेबल ग्रो करती हैं। जैसे ये आपके कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पे आपके कोकोनट बहुत ग्रो करते हैं और पाइनएप्पल ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे 3 आइटम्स दैट वेजिटेरियन ईट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। I have written dal, rice and chapati. And non-vegetarian eat, you can write anything. Mutton, chicken and fish. Chicken and fish. Nowadays, fruits and vegetables are transported from their place to origin to various parts of the country. अब आजकल क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है कि कोई चीज किसी पर्टिकुलर रीजन में ग्रो करती है तो वहीं मिलेगी। आप वो चीज दूसरी जगह भी, आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज की वजह से हमको वो चीज दूसरी जगह भी मिलती है। जैसे जरूरी नहीं है कि राजस्थान में अगर बाजरा ग्रो करता है तो अगर आप सदर्न पार्ट में जाएं तो वहां आपको बाजरा नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हो जाता है ये तो। Almost all types of fruits and vegetables are available to us, no matter which part of the country we live in. मतलब हर तरह का खाना हमको अवेलेबल होता है। ये नहीं है कि अगर जो ये साउथ इंडियन फूड है वहीं पे अवेलेबल होगा, हम नॉर्थ में भी खाते हैं, साउथ इंडियन फूड सब खाते हैं। तो आप इस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की वजह से हम कोई भी चीज कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। Food preparation varies across regions in India. Indian food is fast gaining popularity across the world. अब फूड की प्रेपरेशन है कि फूड को तैयार कैसे किया जाता है, वो डिपेंड करती है रीजन्स पे। मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में उसको प्रिपेयर करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके भी हैं। इंडियन फूड है, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी इसने ले ली है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये किस लिए पॉपुलर है? इट्स फेमस फॉर इट्स यूज ऑफ स्पाइसेस, कि तरह तरह के मसाले, यस, तरह तरह के जो स्पाइसेस यूज किए जाते हैं, उसकी वजह से इंडियन फूड ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत पॉपुलर है। Some commonly used Indian spices are listed below. Find out what these are called in your home. जैसे अब यहाँ पे कुछ स्पाइसेस के नेम है जिनको हम घर में क्या बोलते हैं। टर्मरिक को हम हल्दी बोलते हैं, क्लोव्स को हम लौंग बोलते हैं, रेड चिलीज को हम लाल मिर्च बोलते हैं, ब्लैक पेपर को काली मिर्च बोलते हैं, सिनामन को दालचीनी बोलते हैं, कार्डेमम को इलायची बोलते हैं, और कोरिएंडर को धनिया बोलते हैं। और कुछ और मसाले हैं जो हम अपने किचन में ऐड करते हैं। दीज आर द स्पाइसेस नेम। हींग है, जायफल है, जीरा है, अजवाइन है, जावित्री है, सौंफ और केसर। और भी बहुत सारे स्पाइसेस हैं जो हम यूज करते हैं हमारे किचन में। अब स्पाइसेस क्या करते हैं? स्पाइसेस ऐड कलर एंड फ्लेवर टू अवर फूड। अगर आप बिना मतलब मसाले वाला खाना खाएंगे आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। जैसे सपोज कीजिए अगर हमने सांबर खाया, उसके अंदर हमें सांबर मसाला चाहिए। अगर हमने
जैसे पाव भाजी खाई, उसमें हमें पाव भाजी मसाला है, तो डिफरेंट डिफरेंट मसाले हैं जो हमारे खाने के अंदर टेस्ट को ऐड करते हैं और खाने को टेस्टी बनाते हैं। और इंडिया वैसे ही इन स्पाइसेस की वजह से बहुत फेमस है। इंडियन फूड इज यूजली कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सीसैम ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और घी और क्लैरिफाइड बटर, जिसको हम घी या क्लैरिफाइड बटर भी बोलते हैं। तो हमारे जो इंडियन फूड है कौन से ऑयल में बनता है? सरसों का तेल, सनफ्लावर जो उसको सूर्यमुखी बोलते हैं, तिल का तेल, मूंगफली का तेल या घी या बटर, इन सब में हम बनाते हैं। अब कुछ ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स हैं वो भी बहुत फेमस हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्वीट्स के नेम लिखे हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। जहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है गुलाब जामुन, जलेबी, लड्डू एंड रसगुल्ला। दीज आर सम ट्रेडिशनल एंड वेरी फेमस। आई ऑल्सो लाइक दीज। नाउ वी आर रीडिंग अबाउट क्लोथ्स। अब हम क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे। पीपल ड्रेस डिफरेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे हम खाना अलग अलग खाते हैं ना, वैसे हमारा ड्रेस भी अलग अलग है। अगर आप जैसे आप कश्मीर में चले जाओ, वहाँ के लोग अलग ड्रेस पहनते हैं। अगर आप पंजाब में चले जाओ, वहाँ के अलग ड्रेस पहनते हैं। अगर आप गुजरात में चले जाओ तो वहाँ पे मैन डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस। कश्मीर में बहुत ठंडी होती है। यस, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। अब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही, जैसे हम वहाँ पे फूड ग्रो होता है, वैसे ही क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ का ड्रेसिंग सेंस भी है। People dress differently in different parts of the country. The clothes that people wear are determined by the climate of the place they live. अभी मैंने बताया ना कि क्लोथ्स किस पे डिटर्मिंड है? क्लाइमेट पे। कि अगर सपोज कीजिए राजस्थान डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो यहाँ पे अगर हम फिरन पहनेंगे तो हमको सूटेबल लगेगा नहीं ना, हमको गर्मी लगेगी। और यही अगर हम कॉटन क्लोथ जाके जम्मू कश्मीर में पहने तो आपको ठंड लगेगी ना, वहां पे फिरन सूटेबल है। तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट हमको कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। India experiences a large variety of climatic conditions. The northern regions of our country, such as Leh and Ladakh, experience cold weather for most part of the year. जो हमारे नॉर्दर्न रीजन्स है ना, नॉर्थ के एरिया है, जैसे कि लेह लद्दाख है, वहां का जो वेदर है ऑलमोस्ट ठंडा रहता है पूरे साल लगभग। ऑन द अदर हैंड सदर्न स्टेट सच एज आंध्र प्रदेश, अब नॉर्दर्न के ऑपोजिट क्या है? सदर्न, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु are located near the equator and experience warm equatorial weather for the most part of the year. तो जो ये रीजन्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु ये इक्वेटर के पास होने के कारण यहाँ पे वार्म मतलब वेदर रहता है लगभग पूरे साल, गर्म वेदर रहता है कंपैरेटिवली नॉर्दर्न पार्ट के। पीपल ड्रेस अकॉर्डिंग टू द वेदर दैट प्रिवेल्स, मतलब जैसा वेदर होता है वैसे ही हम कपड़े पहनते हैं। ऑब्वियस है, गर्मी में हम कॉटन क्लोथ पहनेंगे, सर्दी में वुलन। सो पीपल इन लद्दाख वेयर वार्म क्लोथ्स फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, while the people in the warmer state of the south wear light cotton clothes. अब जो लद्दाख के लोग हैं वो गर्म कपड़े पहनेंगे, जबकि यहाँ पे है वार्म स्टेट ऑफ साउथ के लोग हैं वो कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे। ऑब्वियस है, ये तो जैसा मौसम होगा वैसे कपड़े पहनेंगे। In general, we wear cotton clothes in summer to keep our bodies cool in winter. We wear woolen clothes such as shawls, scarves and sweaters to keep our bodies warm. तो हम क्या करते हैं, हमने अपनी बॉडी को कूल रखना है तो हम कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे, और अगर हमें अपनी बॉडी को वार्म रखना है तो हम वुलन क्लोथ्स पहनेंगे। सिंथेटिक और नायलन क्लोथ्स आर worn in rainy season. सिंथेटिक और नायलन के क्लोथ्स हम रेनी सीजन में पहनते हैं, वो इसलिए ताकि वो जल्दी सूख जाते हैं। We also use umbrellas and raincoats in the monsoon. अब अम्ब्रेला और जो रेनकोट है वो हम कौन से सीजन में यूज करेंगे? मॉनसून। There are certain items of clothing like salwar kameez, sarees, trousers, skirts, dresses and shirts that are worn in almost all part of the country. Please put your mic on mute. Look at this picture. Here is the picture of some clothes that are worn in India. साड़ी, सलवार कमीज, कुर्ता चूड़ीदार, मुंडू, ढोकना, लुंगी शर्ट, धोती कुर्ता, ये हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जो पहनी जाती हैं।
महात्मा गांधी urged the people of India to wear khadi garments. जो महात्मा गांधी थे उन्होंने लोगों को बोला कि खादी पहने. खादी, why they urged people to wear khadi? Because khadi is स्वदेशी cloth, हमारे देश का बना हुआ है, which are a symbol of our Indian identity. According to Gandhi ji, khadi is also the essence of स्वदेशी. यानी खादी हमारे इंडियन आइडेंटिटी, मतलब एक सिंबल है, हमारे इंडिया की आइडेंटिटी का सिंबल है कि खादी है तो हमारे इंडिया का क्लोथ है, जो कि हमारे स्वदेशी होने का एक एसेंस भी है. जो हैंड वोवन होता है खादी, ठीक है, हाथ से बने होते हैं. Each state also has its own distinct traditional wear. Here are examples of the traditional wear of some states. अब यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल वेयर बता रखे हैं कुछ स्टेट के. देखिए, कश्मीर में इस तरह के ये फिरन पहने जाते हैं, नागालैंड में इस तरह की ड्रेस पहनी जाती है, ये ट्रेडिशनल वेयर है. ये देखिए मुंडू है, ये केरला में पहनी जाती हैं, और गुजरात है इस तरह की ड्रेस, घाघरा चोली, ये सब इस तरह के हम पर्टिकुलर किसी स्टेट में या रीजन में पहने जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स, मेन एंड वुमेन टुडे आल्सो वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स. अब ये तो थे ट्रेडिशनल क्लोथ्स, इसके अलावा आजकल सब लोग, मैन और वुमेन, वेस्टर्न क्लोथ्स भी बहुत पहनते हैं, बहुत लाइक करते हैं, सब लोग ही पहनते हैं. Such as dresses, trousers, skirts and jeans. People wear traditional clothes on weddings as well as on special occasions. अब जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स है ना, ये आमतौर पे तो वेडिंग्स पे या कोई स्पेशल ओकेजन हो या कोई फंक्शन हो या हमारे कोई फेस्टिवल्स हो तो उन पे पहने जाते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स और कंट्री ईट डिफरेंट फूड. क्यों खाते हैं? बिकॉज द फूड दे ईट दैट डिपेंड ऑन द क्लाइमेट दे लिव इन And weather. yes The the they food live that, in. yes they live in. And live name in. some of the spices available in India. आप कोई भी spices लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? Yes, any spices name you can write. India, turmeric, cloves, red chili, black pepper, and cardamom. Yes, Nice. 5 items of clothing that are worn by women. साड़ी है, सलवार कमीज है, कुर्ता चूड़ीदार है, लहंगा चोली, ओढ़नी. The 5 items are clothing worn by women are sari, salwar kameez, firan, dokna. Yes, कुर्ता पजामा, कुर्ता चूड़ीदार. Yes, लहंगा चोली also. These are the filling the blanks. In the northern regions, which is the staple food? Wheat. The regions of Leh and Ladakh experiences cold weather for most part of the year. यानी पूरे साल लगभग cold weather रहता है वहाँ पे. Cotton clothes are worn in summer. Why we wear cotton clothes? To keep our body cool. And angarkha is worn by the people of Gujarat. Yes. Gujarat. Yes, now this our chapter India clothing is complete. Indian food. Have you understood all these? Yes. Chapter is clear. Yes, ma'am.